स्टूडेंट्स, आज हम एक और सम देखेंगे जो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। वहां क्या दिया हुआ है? टप्पू एंड सोनू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 1:2। तो हियर ओल्ड रेशियो इज गिवन 1:2। बैलेंस से दिया है पहले। They admitted Goli as a new partner on the following terms. New partner Goli. Here we have two partner old, Tapu and Sonu, and one new partner name is Goli. The next, first adjustment, goodwill is valued 54,000. Goodwill की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 54,000. Goodwill का क्या करना है? कुछ बोला नहीं है कि goodwill Goli लाएगा कि नहीं लाएगा. Okay? तो ये adjustment हम बाद में करेंगे. Now second, bad debt reserve on debtors is to maintain 10,000. 10,000 मेंटेन करना है bad debt reserve on debtors. तो debtors दिया है आपको बैलेंस शीट में 80,000 माइनस bad debt reserve कितना मेंटेन करना है? 10,000. ठीक है, 80 minus 10, so here we can write 70,000. अब अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में बैड डेट रिजर्व इज ऑलरेडी गिवन 16,000. मतलब प्रीवियसली हमारे पास 16,000 का बैड डेट रिजर्व था. अब कितना मेंटेन करना है? ओनली 10,000. मतलब 6,000 बैड डेट रिजर्व कम हुआ. नाउ द वैल्यू ऑफ बैड डेट रिजर्व इज रिड्यूस सो इट मींस इट्स अ प्रॉफिट फॉर अस. तो कहाँ लिखेंगे हम लोग उसको? यहाँ लिखेंगे, है ना. हमारा बैड डेट कम हुआ मतलब क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा. तो यहाँ लिखेंगे 6,000. The next, land and building is to be increased by 10%. Land and building is increased by 10%. Look at the land and building. Land and building is given in your balance sheet 3 lakh. Okay? क्या बोला लोगों ने? इंक्रीज करना है. How much increase? 10%. So here 3 lakh into 10%. That means 30,000. So here 2,70,000. Now a value of land and building is increased. That means it's a profit for us. Profit, which side we are going to record it? Credit side. What we write here? We write here land and building. Amount is 30,000. Okay. The next, book value of machine is 25% more than its market value. Book value of machine is 25% more than its market value. मतलब बुक में दिया है वो ज्यादा है मार्केट से. ओके, कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है. बुक में दिया है वो 25% ज्यादा है. मतलब बुक में दिया है वो कितना होगा? 125%. ओके, तो we can write here if market value is 100, increase 25%, तो book value is 125. Here, if book value is 125, then market value is 100. तो यहाँ book value क्या दिया है आपको? 1 लाख. अगर book value में 1 लाख दिया है तो what is the market value? The market value is 80,000. How? 1 lakh into 100 divided by 120 to 80,000. Now, machine is given in your balance sheet 1 lakh and market value is 80,000. That means a value of machine is reduced. Okay, so we can write here machine 1 lakh minus reduce 20,000, market value is 80,000. Now a value of machinery is reduced. That means it's a loss for us. Loss where we are going to record it? Debit side. Machinery account amount is 20,000. Okay. Now next one is good. Yes. Fifth adjustment. A value of stock is to be reduced by 10%. A value of stock is reduced by 10%. Look at the balance sheet. In the balance sheet, stock is given 40,000. Is it? Stock is given 40,000. Adjustment क्या दिया है? Value of stock is reduced. Reduce मतलब कम करना है. तो minus reduce how much? 10% means 4,000. So here 36,000. Now
a value of stock is reduced, that means it's a loss for us. Loss where we are going to record it, debit side. What we write here? We write here stock. It's a loss for us. Okay. Then next, Goli will bring his capital equal to 50% of net asset of new firm. जो न्यू फर्म है उसकी जो नेट एसेट है, नेट एसेट का 50% गोली विल ब्रिंग. नेट एसेट का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी. वो तो कब लास्ट में होगा ना, तो ये एडजस्टमेंट बाकी है. ओके, पहला और छठा एडजस्टमेंट बाद में करेंगे. नाउ 7th वन, गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. यहाँ क्लैरिफाई किया हुआ है, गोली अपने हिस्से का गुडविल कैश में लाएगा. अब पहले क्या करना पड़ेगा हमको? वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गोली. ओके, यहाँ गोली का शेयर दिया नहीं है, वो लास्ट एडजस्टमेंट दिया आपको. टप्पू सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड सोनू सेक्रीफाइस 1/6 फॉर गोली. टप्पू अपने हिस्से में से 1/3 सेक्रीफाइस करेगा. अब यहाँ टप्पू का हिस्सा कितना है, तो पहले हम फाइंड करेंगे सेक्रीफाइस ऑफ टप्पू. टप्पू का शेयर 1/3 है, टप्पू उसमें से कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/3. तो 1/3 into 1/3, तो टप्पू विल सेक्रीफाइस 1/9 एंड सेक्रीफाइस ऑफ सोनू. यहाँ बोला हुआ है सोनू विल सेक्रीफाइस 1/6. यहाँ ऐसा नहीं बोला है कि सोनू अपने हिस्से से करेगी. सोनू टोटल सेक्रीफाइस कितना करेगी? 1/6. ओके, तो टप्पू का सेक्रीफाइस और सोनू का सेक्रीफाइस, एक दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? न्यू रेशियो ऑफ या न्यू शेयर ऑफ गोली. तो इधर 1/9 प्लस 1/6. एलसीएम कितना आएगा? 18 आएगा. तो इधर 18 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 18 आने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 18. तो वी कैन राइट हियर 5/18. दिस इज द शेयर ऑफ गोली. ओके, दिस इज द शेयर ऑफ गोली. अब क्या बोला लोगों ने? गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. गोली अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाएगा. नाउ वी हैव मूव्ड टू द फर्स्ट एडजस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या था? गुडविल इज वैल्यू 54,000. टोटल गुडविल कितनी है? 54,000 है. 54,000 में गोली का शेयर कितना है? 5/18. तो 54,000 into 5 divided by 18. So we can write here approx 15,000. Okay, 54,000 into 5 divided by 18 is 15,000. So this is the share of goodwill for Goli. Okay, now क्या बोला लोगों ने? Goli will bring his share of goodwill in cash. तो इसके लिए कहा है कि कैश में आएगी ना 15,000. What we write here? We write here premium for goodwill. ओके, इसी की सेकेंडरी कहाँ आएगी? हियर राइट साइड, प्रीमियम फॉर गुडविल. 15,000 we are distributed among the old partner Tapu and Sonu. In which ratio? Sacrifice ratio. Here sacrifice ratio is 2:3. Okay, so 15,000 into 2, so 6,000, and 15,000 into 3 divided by 5 is equal to 9,000. ओके, तो ये पहला 7वां और 8वां एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया. ठीक है, अब सिर्फ एक ही बाकी है. विच वन? 6th वन. गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ न्यू नेट एसेट्स, नेट एसेट ऑफ न्यू फर्म्स. ओके, तो ये बाद में होगा व्हेन वी क्लोज द अकाउंट. तो हम क्या करेंगे? रिमेनिंग मारेंगे. कैपिटल अकाउंट लिखेंगे. व्हाट वी राइट हियर? वी राइट हियर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. For Tapu, it is called 2 lakh, and for Sonu, it's 3 lakh. The next, profit and loss account. It's a reserve. That's why we are distributed among the partner in old ratio. Profit and loss. कितना दिया आपको? 48,000. रेशियो कितना है? 1:3. तो कितना है यहाँ पे? 16,000. And 32,000. Okay, then creditors as it is, amount 50,000. Bad debt reserve we already recorded.
नेक्स्ट गुडविल, गुडविल जो आपको बैलेंस शीट में दिया है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके, ऑल पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, गुडविल, ओके। तो ये कितना है यहाँ पे 18,000 एंड 36,000, 54,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो 18,000 36,000। देन नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग फिनिश, मशीनरी हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेटर्स भी हो गया, कैश बैलेंस इन कैश अकाउंट, व्हाट वी राइट है बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, अमाउंट इज 40,000, okay. So here now we close revaluation account, then we close capital account, then we close cash account, and then last balance sheet, okay. अभी भी यहाँ पे एक एडजस्टमेंट बाकी है, क्या है, गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ नेट एसेट ऑफ न्यू फर्म, ओके। वो कब होगा, जब हम ये क्लोज करेंगे, ठीक है। उसकी इफेक्ट यहाँ पे आएगी नहीं, तो यहाँ टोटल 36,000, यस 36,000, 36 minus 24, so here 12,000, this is divisible profit. Net profit we are distributed among the whole partner, Tapu and Sonu, in which ratio 1:3, sorry 1:2. So divided by 3, we have 4,000 and 8,000, okay. That amount we are transferred to the capital account, divisible profit. For Tapu it is called 4,000, for Sonu it's 8,000. Now we close and capital account 2 lakh plus 6,000 plus 16,000 plus 4,000. So here 2,26,000 total. Okay, 16 plus 4, 20, 20 plus 6, 26. Here 49, 3,49,000. Here 2,26,000 for Tapu and 3,49,000 for Sonu. Now difference 2,26,000 minus 18,000. So here 2,08,000. Balance carry forward. Okay. And here 3,49,000 minus 36,000 to 3,13,000. Okay, 3,13,000 for Sonu. Now adjustment क्या है? Golly will bring his capital equal to 50% of net asset. Net asset मतलब total assets minus total liability. अब total asset में से total liability minus करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? Capital. तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि total asset, sorry, net asset is equal to total कैपिटल। टोटल कैपिटल मतलब टप्पू, सोनू और गोली का मिला के, ठीक है। तीनों का टोटल कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट। तो जो टोटल कैपिटल है तीनों का मिला के उसका 50% किसका है, गोली का। 50% हु विल ब्रिंग, गोली विल ब्रिंग। उसका मतलब क्या होता है, टप्पू एंड सोनू कितना होगा, 50% होगा। मतलब टप्पू और सोनू का जो टोटल कैपिटल है उतना ही कैपिटल गोली विल ब्रिंग, ओके। तो यहाँ टप्पू और गोली का टोटल कैपिटल कितना है, 2,08,000 प्लस 3,13,000. So total capital is 5,21,000. This is the total capital of Tapu and Sonu. That 5,20,000 who will bring? Goli will bring. Goli will bring means cash comes in. So cash account debit side. What we write here? Goli's capital account. Amount is 5,21,000. Second thing here, cash account 5,21,000. ये कहाँ लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हो गया, टप्पू का है 2,08,000, सोनू का है 3,13,000, and for Goli it is called 5,21,000. Okay, now we close cash account. What we write here? We write here balance carry forward. Okay, 521 plus 40, 561. 5,56,000. Okay, sorry, 76,000. Here same 5,76,000,
5,76,000। ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग? बैलेंस शीट में एसेट साइड। कैश 5,76,000। नाउ टोटल ऑफ बोथ साइड मस्ट बी सेम। ओके, हियर दिस सम इज ऑलमोस्ट फिनिश। ओके, अब एक और सम है क्वेश्चन 21। ओके, एक और सेशन एडमिशन का, उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। ओके, आई होप सो आपको ये पूरे समय समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम ट्राई करेंगे आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व करने की। ओके, आज का इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।